So one by one problem. Again, remember, our idea is not to guess the answer. Our idea is to do the answer properly. एक दो questions मैं करके दिखाऊंगा, ठीक है? कैसे हम लिखेंगे इसको? Because आप 1/4 लिखने से आपको marks नहीं मिलने वाले unless and until it's an objective. So let's see the first question. The first question, few questions will be on dice, few on cards, few on urn and balls, सब type के देखेंगे. Coins. A die is thrown once, ठीक है? A die is thrown once. What is the probability that it shows a 3? जैसे इस question को लेते हैं. ये तो आप कर पाएंगे. I think probability that it shows an odd number. तो सबसे पहले, whenever you start your problem, okay, so how do we work it out? तो हमने इसको लिखा solution. Say we are doing part number 3. Okay, we'll do part 2 also. Don't worry. So we say, let's write our sample space, or you can write total number of outcome. Your sample space में क्या है? A die is thrown once, so you can have 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, total outcomes or total number of outcomes are 6. Now you have to write favorable outcomes. अच्छा, favorable outcome मतलब we are doing part number 3. Part number 3 क्या है? An odd number. इसमें odd number क्या क्या है बेटा? 1, 3, 5. So how many favorable outcomes? 3. Okay, favorable outcomes are 3. So हम लिखेंगे probability of an odd number. Probability of an odd number. So it becomes number of favorable outcomes Acha, please remember, dice में many children get confused 1, 2, 3. These are options. We are more interested in the count. कितने मुझे फेवर करते हैं? 1, 3, 5. मतलब 3 मुझे फेवर करते हैं. 3 is to be the it is the number of count. तो फैन चला लो ना, प्रेस कर. दोनों को देखे मुझे गर्मी लग रहा है. फैन चला लो. प्रेस करो उसको. 3 प्रेस कर दो. दोनों एक यार 3. And switch on the switch there. And when you go, you switch it off back. Okay, right. Number of favorable outcomes divided by total number of outcomes. Do write the formula, because in the exam you will get 1 or 2 questions of probability only. So आप अपना formula जरूर लिखिए. So now we can write it. What is the number? 3 divided by 6, which is equal to half. Can you now try for this one? Don't try the answer. लिख के कीजिए. Put the habit of writing. Sir, कुछ लिखिए. आप खाली सुनते हैं. It will not help you. I'm again saying it will not help you. Right. By this time I have written this much. You have still not written anything. And don't write the question. You attend this class. Question ये आपको PDF में जाएगा. Question लिख के वक्त बर्बाद मत कीजिए. Use this question, you'll get it in PDF. So right now you understand the question. Attend it as if you are attending it from a book. And try to do 1, 2, 3, 4. Probability of getting a 3. 3 means only 1. 1 upon 6. ठीक है? अतिश समझ में आया ना? लिख के ऐसे लिखिए. क्वेश्चंस आपको मिलते जाएंगे. ये आपको PDF में जाएगा. सो आपको कोई घबराने की बात नहीं है. क्वेश्चंस रहेंगे. पर आप देखिए आपको ये स्टेप समझ में आया कि नहीं. If you don't write sample space, still okay. You can write total outcomes, or you can use better the English as total number of outcomes. Total number of outcomes. And you can write number of favorable outcomes. क्योंकि आपका हर आंसर ग्रेड 10 में इसी इक्वेशन के ऊपर है. That probability of an event. In books you may find they'll write let E be the event of getting an odd number. Then they will write P of E. Let E be the event of getting a number greater than 4. Greater than 4 बोला है. तो क्या क्या होगा? 5 and 6. 4 नहीं आएगा. Greater than 4 समझते हैं ना? See, there's a difference between this and there's a difference between this. इसका मतलब है equal or more than 4. इसमें 4, 5, 6 आएगा. इसमें सिर्फ 5 और 6 आएगा. तो इसका ऑप्शन क्या होगा? 2/6. That is 1 upon 3. Clear? Anyone has any? This is the most elementary problem. Anyone? आज का बिटू समझ में आया? तेजिता, have you understood this question? No issues. Can we go ahead? ठीक है, लिख लीजिए सुंदर से. ये फॉर्मूला बार बार लिखिए. Probability of an event
is total number of outcomes, total number of favorable outcomes divided by total number of outcomes. ठीक है, चलें आगे. Last one. You're doing it. Okay, do it. कुछ 20-25 प्रॉब्लम है. कई में इतना देर लगेगा तो कैसे होगा? जल्दी. Crack the logic. Just see whether you have understood what is greater than. ठीक है? These are very pillu problems. Let's go. चलाएं. Move to the next one. Okay. Yusha, you're looking like Guns N' Roses का गिटारिस्ट है Slash. वो अपना मुंह नहीं दिखाता है कभी, यहाँ से बाल खोल के रखता है. ठीक है? Next one. A die is exam board paper questions है सारे. A die is thrown once. पढ़िए पहले question को आराम से. Here don't try to be a copycat. Take your time to read the question, convert it into your mother tongue or any language that you are fine with, और इसे आसानी से समझिए. Die is thrown one. एक बार एक डाइस को फेंका. Find the probability of getting an even prime number. तो सारे problems इसमें कैसे होते हैं? Let us again see the sample space. Our sample space would be 1, 2, 3, 4, 5, 6. अच्छा, आपसे क्या मांगा गया है? Even prime number. प्राइम नंबर क्या क्या होता है? यहाँ पे प्राइम नंबर कितने हैं? एक ही इवन प्राइम नंबर है पूरी दुनिया में, दैट इज 2. दिस इज योर इवन प्राइम, दिस इज योर फेवरेबल आउटकम. तो आपका आंसर क्या होगा? 1 is your favorable outcome. Only one favorable outcome out of total number of outcomes are how many? 6. So your answer would be 1 by 6. So let's do this. So we write number of favorable outcomes. Favorable outcomes is equal to 1. And total number of outcomes is equal to 6. So probability of getting an even prime number. I am not writing the formula again. You should write it is 1/6. Clear बच्चा? नेक्स्ट वाले के लॉजिक को देखिए. A multiple of 3. Multiple of 3. Multiple का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई करके. कितने से मल्टीप्लाई शुरू करेंगे? 1 से शुरू करेंगे. 3 into 1, 3 into 2. तो 3 के मल्टीपल्स आपको यहाँ पे क्या क्या दिख रहे हैं? ये एकदम दोरा जैसा है ये चैप्टर. क्या दिख रहा है? हमें दिख रहा है 3 और 6, यानी कि 2 मल्टीपल. 2 divided by 6. So your answer. So again write it. Number of favorable outcomes. Remember multiples start with the number itself always. है ना? वेदांत साहब समझ में आया? तो 2 के मल्टीपल क्या है? 2 से शुरू होता है. 2, 4, 6. नंबर खुद भी अपना मल्टीपल होता है क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो मल्टीपल हाँ खुद ही आएगा. अद्वैत समझ में आ रहा है? तो बेटो ये सब हल्लू हल्लू प्रॉब्लम है. अब आगे जाके मजेदार वाले आएंगे. ऋषभ साहब ऑल ओके सो फार? आशका ऑल ओके सो फार? गुड. चलिए आगे बढ़े. अगला सवाल. 3,20,000 रुपए के लिए ये रहा आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर. 2 coins are tossed simultaneously. मैंने आपको कहा था 2 coins simultaneously टॉस करना और एक कॉइन को 2 बार टॉस करना in probability same are tossed simultaneously. What is the probability of getting at least? At least मतलब कम से कम एक हेड तो होना ही चाहिए. तो इसका सैंपल स्पेस क्या होगा बच्चा लोग? अगर हम इसे टॉस करें तो उसका फॉर्मूला तो हमें आता है. कॉइन्स 2 to the power 2 4 आने चाहिए. हेड हेड होगा, हेड टेल होगा, टेल हेड होगा, टेल टेल होगा. अब हमें क्या पूछा है? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट लीस्ट 1 हेड? एक टू हेड होना ही चाहिए. तो एक टू हेड होना ही चाहिए. तो कौन कौन है? ये चलेगा, इसमें 2 हेड है, हमें तो 1 हेड बोला, चलेगा. ये भी चलेगा, सॉरी हाँ, और ये भी चलेगा. इज दैट फाइन? सो व्हाट इज योर प्रोबेबिलिटी नाउ? Favorable outcomes are how many? 3. Total number of outcomes are 4. Favorable outcomes are 3. So your probability would be 3/4 because it's favorable outcomes by total number of outcomes. यानी कि 75%. 3/4 मतलब पिज्जा के 4 क्वाड्रेंट में 3 टू खा लोगे तो 75% पिज्जा खा लिया ना. 3/4 लिखिए. अच्छा, इसमें अगर बोलता था एट मोस्ट 1 हेड, यही क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करते हैं बेटे.
इसको लिखते हैं एटमोस्ट वन हेड। हाँ, एटमोस्ट वन हेड मतलब नहीं भी लाओगे, एटमोस्ट वन हेड में कौन कौन क्वालिफाई करेगा देखते हैं पहले। हाँ, ये क्वालिफाई करेगा, ये भी करेगा, ये भी करेगा। बहुतों को यहां कंफ्यूजन होगा। मैंने क्या बोला, एटमोस्ट। इस आशिका के घर पे जाके मैक्सिमम एक समोसा खाना, मैं सिर्फ पानी पी के आ गया, वैलिड है ना? मैंने बोला मैक्सिमम एक समोसे खाना, नहीं खाया तो भी तो वैलिड है। सेम इट इज हियर, एटमोस्ट वन हेड, इसमें कोई हेड ही नहीं है, ये भी चलेगा, चलेगा, ये फेवरेबल है। प्लीज अंडरस्टैंड दिस वेरी क्लियरली। इफ एनीवन हैज नॉट अंडरस्टूड, आई विल एक्सप्लेन अगेन। मेनी चिल्ड्रन विल राइट दिस एज 2/4, रॉन्ग। समझ में आया बिट्टू, आतिश? एटमोस्ट वन हेड मतलब ज्यादा से ज्यादा एक ही हेड होना चाहिए, जीरो हेड भी हमें चलेगा, ये जीरो हेड ऑप्शन है, ठीक है? और अगर आपको पूछता थोड़ा सा 11 क्लासेस, एटलीस्ट अ हेड और अ टेल, और अभी आप करने नहीं सीखे हो, एटलीस्ट अ हेड और अ टेल, 100% कॉइन को टॉस करने से हेड या टेल कुछ ना कुछ तो गिरेगा ही ना भाई। हमें बोला हेड लाओगे तो भी ओके, टेल लाओगे तो भी ओके, ठीक है ना? तो उसको ऐसे बोलेगा आइदर अ हेड और अ टेल। क्लियर? ये वाले कॉइन्स थोड़ा पल्ले पड़ रहा है, अभी समझ में आ रहा है, डाइस पल्ले। चले आगे। बट यू कीप ऑन राइटिंग दैट फॉर्मूला एवरी टाइम, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। ये फॉर्मूला आप हमेशा लिखते जाइए। P of E is equal to number of favorable outcomes, ठीक है? And this will be your formula anywhere, only this will get a little bit more complex. Total number of outcomes. दिए गए ऑप्शन में इट्स लाइक बारबेक्यू नेशन वाला, in all the platter what is favoring me or how much do I eat, that's all about probability. चले नेक्स्ट आइए। 3 unbiased coins are tossed simultaneously। कितने ऑप्शन आते हैं इसमें? 8 ऑप्शन आते हैं। सब लिखने की भी जरूरत नहीं है, ऐसे सोचते हैं। 3 2 to the power of 3, yes 8 ऑप्शंस आते हैं। 2 to the power of 3 वाला फॉर्मूला समझ में आया ना? ऑप्शंस 2, हेड या टेल, और कॉइन कितने हैं? 3। तो हमें यहाँ पे 8 ऑप्शंस आएंगे। क्या पूछा है देखते हैं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली 2 हेड्स। तो एक बार सैंपल स्पेस तो लिखना पड़ेगा, नहीं तो फंस जाएंगे। तो क्या क्या है सैंपल स्पेस? लिखिए, हेड हेड हेड, हेड हेड टेल, हेड टेल टेल, टेल टेल टेल, फिर टेल हेड हेड, टेल हेड टेल, टेल टेल हेड। 1 2 3 4 5 6 7 और एक रह गया है हेड टेल टेल, टेल हेड टेल, टेल टेल हेड, हेड टेल टेल, हेड टेल टेल, ठीक है ना? ये हमारा ऑप्शन है। अच्छा, पहले क्या बोला है? एग्जैक्टली 2 हेड्स। अच्छा, दिस टाइम देयर इज नथिंग कॉल्ड समोसा एट मोस्ट और एट लीस्ट। दे हैव टोल्ड 2 समोसे खा के आना भाई साहब। 2 समोसे कहाँ है? यहाँ है, यहाँ है, बस। 3 कहां पे दिखा? Who says 3? आंखें निकाल के गोटियां खेलूंगा अभी उसके। Who said 3? 3 कहां है? 3 तो नहीं दिख रहा है मुझे, तो 2 ही दिख रहे हैं। Understood? So the option will be 2/8, which is equal to 1/4, 25%. Have you understood? सजीदा बोलो बेटो, any confusion? सर HTT रिपीट हो गया। कौन सा रिपीट हो गया है? हाँ, दैट इज व्हाट शी इज सेइंग। HTT कौन सा रिपीट हुआ है? हाँ, ये रिपीट हुआ है। सो आई डिडंट राइट व्हाट, HTH ना? हाँ, यस, आई एक्चुअली रोट योर इंटरनेट्स आर वेरी स्लो, HTH, ठीक है? हाँ, HTH होने से 3 है। तो भाई साहब आंसर देखा, 3 हो गए, 3, exactly 2. You are correct. That's the spirit and that's the confidence. मजा आया ये करके आपको भी? See, you found, not only you understood, you could also trace a fault. This is called दिमाग है, ठीक है ना जी? अच्छा, अगला वाला क्या है?
एट मोस्ट 2 heads, ज्यादा से ज्यादा 2 head. That, oh, at least 2 heads. At least 2 heads. So at least 2 heads will be, ये चलेगा all plus HHH. So this one also 4 by 8. So 1 by 4. Yeah. So what we take the tens will have only one match. No, no. What did you say, Ashka? You're attempting for question number 1 or question number 2? You tell me that first. So what we choose between 2 and 2. No. You are trying to attempt for part 2 or part 3. Then I'll answer your question. No, sir, part 2 only, but then I realized that it's like at least. हाँ, it says at least 2 heads. कम से कम 2 head. तो 3 head भी चलेगा ना बिट्टू हमें, ठीक है? आइए. Third one they are saying at most 2 heads. ज्यादा से ज्यादा 2 head होने चाहिए. तो ये चलेगा, ये चलेगा, ये भी 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 चलेगा. 7 by 8. Now you are getting it. At most. आंसर बट्टू समझ में आ रहा है तो? हाँ, तुम्हारा थोड़ा इंटरफेरेंस हो रहा है ना, कभी 9 कभी 10. अभी तुम 10 समझो अपने आप को. At most कितने हैं? 2 heads. So no head is also okay with us. Fine. ये सारे क्वेश्चन जाएंगे और एक बढ़िया एक वो दे दूंगा नुस्खा, उसको करते रहिएगा घर पे. उसको कर लिया फिर और कुछ नहीं करने की जरूरत है. You are good to go with your, and if you do all those questions in a good book, you're good to go for your exams for probability straight away. In fact, you can solve tomorrow's questions also. Tomorrow means the board paper is tomorrow. चले आगे. He is anyway, he will be writing. He is a scribe. चले आगे. अद्वैत हुआ बेटू? हाँ कर लो. कुछ एक आप जस्ट यहाँ देखो आपको लॉजिक समझ में आ रहा है कि नहीं. ये पूरा चीज आपको जाएगा तो आप घर बैठे भी कर सकते हैं. डोंट थिंक ये हो गया सर के यहाँ कर लिया तो हो गया. आप इसको बैठ के कीजिए आराम से. चले चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. कार्ड्स नंबर्ड 11 to 60. ये बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है. जब कोई नंबरिंग बोलता है ना तो आपको गिनती आनी चाहिए. 11 to 60. सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन ऐसे सोचो, 11 से गिनती स्टार्ट हुआ है. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 यानी 10 कार्ड हो गए. 20 to 30 और 10 कार्ड. समझ में आया ना. 11 to, ऐसा मत करना 11 to 60 मीन्स एक कार्ड शॉर्ट, वैसे नहीं करते हैं. इट्स ऑलवेज 60 minus 10 होता है और 60 minus 11 plus 1 होता है. Just have you understood how many cards? 11 to 60 means 11 is counted. So the best way is you deduct 60 minus 11 and add 1 with it. Okay. Are kept in a box. तो हमारे पास एक बॉक्स है और इस बॉक्स में 11 से लेके .60 यानी कि what is the total count? The total count is 50 number of cards are kept here. Right? If a card is drawn at random, random मतलब आंख बंद करके ऐसे पुल आउट कर लिया. Find the probability that the number drawn on the card is a odd number. अब odd numbers ढूंढिए पहले. जैसे देखते हैं 11 के सीरीज में कितने odd numbers है जरा देखो तो. 11, 13 and 19. ठीक है ना. तो ऐसे ही odd numbers 20 के सीरीज में भी आएंगे. हर सीरीज में कितने हैं? इस सीरीज में कितने मिले आपको? 5. 20 के सीरीज में कितने मिलेंगे? 5. 30 के सीरीज में 5. 40 के सीरीज में 5 और 50 के सीरीज में भी 5. So total number of odds you are getting is 1, 2, 3, 4, 5. 25 odd cards you will get. यहां से प्रॉब्लम थोड़ा सा मजेदार होना शुरू होता है. 25 odd cards we are getting, right? So shall we write now? Let's write. Let's write number of favorable outcomes. Number of favorable outcomes is nothing but number of odd numbers between 11 and 60 both included.
है ना बच्चा, बोथ इंक्लूडेड। कितने आ रहे हैं हमारे पास? 25। हैव यू अंडरस्टूड ये 25 कैसे आया अद्वैत? ये 25 ऑड नंबर्स कैसे आए पता है? हमने सिर्फ 11 के सीरीज को लिख के देखा, हर सीरीज में 5 आ रहे हैं, तो 5 सीरीज है हमारे पास 25। आज का भी तो समझ में आया ये चीज? डिड यू अंडरस्टैंड? Sir, in the exam and MCQ, can't we just divide the number, like the total number by एमसीक्यू में तो आप बाजू वाले बच्चे का कॉपी देख के भी टिक मार देंगे तो भी राइट है, आपको करके दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। इफ इट इज इन no in MCQ question the option will be given to you, you just need to tick it. Listen to me, I'll answer your question. I've understood. See, there is an issue in board. The type of MCQ question that comes is designed in such a way that it takes MCQ oriented time only. जब आपका स्कूल MCQ बनाता है ना, तो वो क्या करेगा, नॉर्मल प्रॉब्लम को उसके 4 ऑप्शन देके MCQ कर देगा। They don't think about the time factor. It is equivalent to a normal problem. That's why I always say, children, start the paper bottom up. What is the point in breaking your head 5 minutes on an MCQ question? Right भी किया तो कितना मिलेगा? 1 मिलेगा। उससे अच्छा है हमेशा बॉटम अप करो सारे क्वेश्चन, सोशल जो भी पेपर है, always go bottom, but don't mix sections. First say section E, section D, section C, section B, and draw a line and then do it. The idea is what, you know, suppose you are doing a social studies question and there's some see how it will be. We'll just take 1 minute break here. All your MCQs will be different from each other. It will be from the entire syllabus. First question will be from chapter 1. You will go to a different school, different center, different teachers, different pace. जैसे 3 क्वेश्चन आपसे नहीं होगा ना, आपका नेल बैटिंग शुरू हो जाएगा। मिस्टर राजीव रस्तोगी, बिग रीजन टू वरी, अनदर 0 कम कर दिया, ये आपके फादर की मंथली सैलरी है। It will be situation. Rather आप 5 mark question करो। 5 mark question will never come pinpointed. They will say discuss the reasons of the first quit India movement. आराम से बैठ के लिखते रहो, आपका एड्रेनलिन सेट होगा। तब तक बहुत सारे 1 mark question का आंसर्स भी आपको याद आना शुरू हो जाए। Like for example, somebody says there's an objective question, राम को कितने साल का वनवास हुआ था? You don't know, 12, 14, 15, लेकिन लास्ट में एक क्वेश्चन है, राम के वनवास पर 100 शब्दों में निबंध लिखिए। वहां तो आप लिखोगे ही ना 14 साल, तो आपको याद हो जाता है। या Math also we should do the same. But let's see, like it is all your choice. If I am a student, I will never do objective first. The reason is every question. Tell me, if you have played cricket ever in your life and you are playing a main match, would you like, as you have just gone onto the crease, everyone shouting at you, cheering, हर ओवर पे बॉलर चेंज हो रहा है, आपको पसंद आएगा क्या? Every over you are getting a new bowler. Rather you want the same bowler to come. Rather आपका आई सेट हो ना, और आपको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए he is changing balls. I will not do. Because objective, every question will be different. And now coming to Ashka's question, if it is an objective question, you just need to write the answer. Your explanation is not required. Either you tick it, if it is a fill in the blanks, you just show it. There's no workout required for that. But this question objective आने के chances कम रहते हैं, because these need some workout. ये 2 mark में आ सकता है। ठीक है, ये चीज हो गया। ओके, नेक्स्ट वन, अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। अच्छा, परफेक्ट स्क्वायर किसको कहते हैं? number which has whose square root is a natural number. A number which has square root नहीं, हर नंबर का स्क्वायर रूट है। 3 का भी स्क्वायर रूट है, 4 का भी स्क्वायर रूट है, 5 का भी है। जिसका स्क्वायर रूट एक नेचुरल नंबर है, तो क्या क्या होगा, कैसे ढूंढेंगे आप नंबर से ढूंढना शुरू कर दीजिए। 11 से है ना, सो द फर्स्ट वन यू विल गेट इज 16। 16 के बाद आएगा 16 is 4 square, so 5 square is 25, 6 square is 36, 7 square is 49, 8 square does not qualify because that is 64 beyond, that is beyond. तो हमारे पास कितने फेवरेबल आए? 4 favorable, 4 divided by. See, what I'm stressing here in this workout with you is to crack the logic of these questions. Advait, clear ये? परफेक्ट स्क्वायर, हमें सिर्फ 4 परफेक्ट स्क्वायर मिलेंगे। 16 से शुरू करेंगे, और 16 आप ऐसे देखो, 16 के बाद आप ये मत देखो 17 नहीं है, 18 नहीं है, ऐसा नहीं करते। 16 किसका परफेक्ट स्क्वायर है? 4, तो अगला वाला 5 है, 5 का 25, अगला वाला 6 है 36, अगला वाला 7 है 49, फिर 8 64, पर 64 तो इसको क्रॉस कर रहा है, सो दैट विल नॉट क्वालिफाई। अदिति, क्लियर? ठीक है, सो वी हैव डन
odd number we have done perfecto square. Divisible by 5. डिविजिबल बाय 5 का कहानी कहां से शुरू होगा? 15 से शुरू होगा. 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60. कितने हुए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 10 divided by 50 which is equal to 1/5. You are going to write the percentage. The same thing that we 1/5 को करके into 100 लिख दो. क्लियर तेजिता? अद्वैत क्लियर अभी? और आतिश क्लियर है? हाँ, उस पेन के साथ धीरे धीरे डिवोर्स कर लीजिए. वो पेन अच्छा है पर सीबीएसई में वो पेन आपको अलाउ नहीं करेगा. अभी से हाथ डालेंगे तो आदत आएगा, नहीं तो फिर झिंगा लाला. अब प्राइम नंबर लेस देन 20 से नीचे के प्राइम नंबर्स गिनना शुरू कर दो उल्टा. 19, 17, फिर 13, 11, 15 भी तो 15 कहां से प्राइम नंबर है रे? खुद भी कंफ्यूज, मेरे को भी कंफ्यूज करता है. 11 के बाद 7 के बाद 5 के बाद 3 के बाद 2. कितना बोला है? लेस देन 20, प्राइम नंबर लेस देन 20. हाँ, लेकिन हमारा क्वेश्चन कहां तक है? 11. तो ये वाले नहीं आएंगे. दैट इज ऑल्सो a nice thing. So we have got only 4 prime numbers which qualify. So answer will be 4/50, which is equal to 2/25. In any question of probability, numerator cannot be more than denominator. अगर ऐसा आ रहा है तो GADHA सिंड्रोम है. हाँ, ढाचू GADHA. हाँ, is one of them. 1 is neither prime nor composite. प्राइम नंबर 2 से शुरू होता है बेटा. ठीक है? अगर कभी भी आपका प्रोबेबिलिटी 1 से ज्यादा आ रहा है, दैट मीन्स यू हैव गॉन फॉर ए आंसर इज रॉन्ग. प्लीज रीचेक योर आंसर्स. चले आगे. चलो गाड़ी भगाओ तुम लोग यार, इतना कछुए की स्पीड में कर रहे हो. लॉजिक समझ में आया तो आगे बढ़ते हैं सीधा. ठीक है, चलो नेक्स्ट. बॉक्स आ गया. एक बॉक्स है हमारे पास, एक बॉक्स है. ये प्रॉब्लम में वी हैव अ बॉक्स. बॉक्स में क्या है? रेड बॉल्स कितने हैं? रेड बॉल्स हैं इंटू 100. ठीक है, और येलो बॉल्स है 200. इसके 200 बॉल्स है और 50 ब्लू बॉल है. ब्लू बॉल कितने हैं? 50. भाई साहब कितने टोटल बॉल हुए? 350 बॉल्स हुए. दिस इज आवर टोटल काउंट. ओके, इफ अ बॉल. अच्छा, वन मोर क्वेश्चन, 1 मिनट. जैसे आपको बोलता है ये इसको कर लेते हैं फिर आपको बताता हूं. चलो कोई बात नहीं. इफ अ बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बॉक्स. आंख बंद करके हमने यहां से एक बॉल निकाला. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल बी अ ब्लू बॉल? फिर 1/7 वो मत करो. डोंट हैव दैट हैबिट. Probability that it will be a blue ball, this is the first I ask you, don't do that. Don't 1/7. Probability of a blue ball will be 50 favorable outcomes divided by 350 total number of outcomes. If a child leaves the answer this also, he also gets 4. It's not about your 1/7. It's about the pranali, the procedure that you do. That is, ये 1/7 लिखोगे तो मैं बोलूंगा copied from someone. No sir, my answer is correct. Yeah, you copied it. Where is the explanation? Examiner is supposed to read your copy and understand the chronology of your understanding. ठीक है? अच्छा, ऐसे क्वेश्चंस में हम लोग जनरली क्या करते हैं? बॉल इज रिप्लेस्ड, बॉल इज नॉट रिप्लेस्ड. मान लो ये ब्लू बॉल आया ना, द फर्स्ट बॉल टेकन आउट इज अ ब्लू बॉल. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी? एंड द बॉल इज केप्ट इन माय पॉकेट. अगला वाला बॉल जब भी आप निकालोगे, डिनोमिनेटर लेकिन 349 होना शुरू हो जाएगा. समझ रहे हो? दीज आर ऑल लाइक रिप्लेसमेंट क्राइटेरिया. कभी कभी ऐसा क्वेश्चन भी दे देगा, नेक्स्ट वाले में बोलेगा द नेक्स्ट बॉल दैट इज पिक्ड अप विदाउट रिप्लेसमेंट शुड बी ग्रीन. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी? तब आप लेकिन 350 मत करना, क्योंकि एक बॉल ऑलरेडी आप निकाल चुके हो. वेरी गुड. चलिए नेक्स्ट. येलो बॉल, नॉट अ येलो बॉल.
नॉट अ येलो बॉल, इसका मैंने आपको एक फॉर्मूला सिखाया था. यू ट्राई टू फाइंड आउट व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ येलो एंड डू 1 माइनस दैट. कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट है ये, याद आया? सो लेट्स सी व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ येलो बॉल. दो तरीके से कर सकते हो, बाकियों का प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हो, वैसे भी कर सकते हैं, दोनों टाइप से करके देखते हैं. प्रोबेबिलिटी ऑफ येलो बॉल क्या आएगा, बोलो बेटा? 200 अपॉन 350. बट हमें बोला है प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट अ येलो बॉल ऑफ द P नॉट येलो, येलो येलो डर्टी फेलो, इज 1 माइनस P येलो, है ना? तो कितना हुआ भाई साहब? 350 माइनस 250 डिवाइडेड बाय 350, यानी कितना आया? 150 बाई 250, 350. ये हमारा आंसर. अच्छा, एक और वे में कर सकते थे. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग ए येलो? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड और ब्लू. तो हम देखें वैसे भी कर सकते हैं. प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड एंड ब्लू, रेड एंड ब्लू करेंगे तो कितने हमारे ऑप्शन आ रहे हैं? 100 प्लस 50, 150 डिवाइडेड बाय 350. See, the answer will be same. Probability क्या हुआ? Probability of getting a yellow ball, and then you find out what is the probability of not getting a yellow ball. This is the first time we are hitting complementary event. P of P not E, आपको याद है ना लास्ट क्लास में? P not E अगर आप निकालना चाहते हैं, this is 1 minus P of E. This sort of formulas are only applicable for complementary and mutually exclusive event. Happening of one means not happening of the other. तो या तो आप येलो बॉल निकाल के उसके नहीं निकालने की प्रोबेबिलिटी निकाल लो, या फिर हमें येलो नहीं चाहिए तो फिर इनमें से कोई भी नहीं. The other day as I told, find a good boy in Pebble City. नहीं, find a bad boy in Pebble City. बड़ा मुश्किल है. एक गुड बॉय मिलेगा आपको, उसको ढूंढ लो. वो जो बाकी झुंड है, that is all. What is your probability? है ना? चले आगे. Neither yellow nor blue, तो किसको मांग रहा है? Neither yellow, येलो भी नहीं चाहिए, ब्लू भी नहीं चाहिए, घुमा के पूछ रहा है आपको, रेड चाहिए. तो इसका हो जाएगा P of red, which will be 100 by 350. Have you understood this? हाँ बोलिए. कोई सर बोला? ऋषभ भाई साहब, ये समझ में आया? So here you should write probability that it is neither yellow nor blue is equal to probability of red. और probability of red के लिए फेवरेबल कितने हैं? 100. टोटल कितने हैं? You understood? Shall we go ahead? Now next question. ये आप खुद करो, देखते हैं ये आप कर पाते हो कि नहीं. ठीक है, थोड़ा थोड़ा समझते हैं. एक बैग है हमारे पास, ऐसे भानुमति का पिटारा. इस बैग में क्या है? कंटेन्स व्हाइट, ब्लैक एंड रेड बॉल्स ओनली. व्हाइट है, ब्लैक है और रेड बॉल्स ओनली. अ बॉल इज ड्रॉन आउट एट रैंडम. एक बॉल को हमने रैंडम में निकाला. इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ व्हाइट बॉल, इसने बोल दिया है P white is equal to 3/10. अब बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे? इस 10 को समझ लेंगे टोटल नंबर ऑफ बॉल्स. This may be the fraction reduced in the lowest term. Who knows? It can be 30 by 100 also. So don't do like that. And that of a black ball, यानी कि if you pick up a black ball, उसकी probability कितनी है? 2/5. Then find the probability of getting a red ball. हमें पूछा red ball की probability निकाले. Okay, get red ball. हाँ, 1. Now sum of all फट से मत लगाइए. If the bag contains 20 black balls, how many black balls are there? 20 black balls. Then find the number of balls in the bag. ठीक है, तो यहां से वो करो. Now see what they've said. They've told you the find the probability if the bag contains 20 black balls. 20 black ball आपके पास है. So can you now find out what is the probability of getting a black ball? Total
number of outcome divided by number of favorable outcomes. Probability of black ball हमें दे दिया है, what is it? 2/5. Do I know the total number of outcomes means total number of balls? Do I know? I don't know. So यहाँ पे हमने इसको x रख लिया. And what is the number of favorable outcomes? 20. क्या x का काउंट हमें मिल जाएगा इसमें? x will be equal to 5 into 20 divided by 2. तो कितना हो गया? 50. So now you know that the sum of all the ball count is 50. What is the question they have asked you? Find the total number of balls in the bag. Ah, yeah, answer. The probability of getting red. Then find the total number of balls in the bag, and then find the probability of finding a red ball. Now we don't find the probability of finding a red ball. So how do you find out probability? अब इससे आप white ball का probability calculate कर लीजिए. Probability of the white ball is equal to number of white divided by total number of balls. White plus. करो बेटा, जैसे ठीक लगे करो. Your procedure, try to explain it. It's not that only in one way you can do it. So what is the probability of white? 3/10 should be equal to number of white. This I don't know. Let this be y. Total number of balls is 50. So how much do you get? 10. 5 is 50. So y is equal to 15. That means the white balls are 15. So red balls की count आपको ऐसे ही आ गई. 20 plus 15 is how much? 35. So is red ball should also be how much? 15 red balls. So what is the probability of getting a red ball? The probability of getting a red ball is 15/50. ठीक है, आप टैली कर लो, आपको आ जाएगा. वो समझ जाइए. इक्वली लाइकली, ये इक्वली लाइकली में हम यूज करते हैं. मैच करना डज नॉट मीन प्रोसीजर इज करेक्ट. ऑलवेज रिमेंबर दैट. ये इक्वली लाइकली इवेंट नहीं है. इक्वली लाइकली इवेंट वो होता है जहां हर चीज के होने की समान संभावना होती है. यहां समान संभावना नहीं है. यहां रेड और व्हाइट का इक्वली लाइकली है, ब्लैक के नहीं है. ब्लैक के प्रोबेबिलिटी ज्यादा है मिलने का, बट दैट डज नॉट मीन ब्लैक ही आएगा. अंडरस्टूड? चलें आगे. टू डिफरेंट डाई आर रोल्ड टुगेदर. टू डाइस आर रोल्ड टुगेदर. अच्छा, इसको ऐसे क्वेश्चन कैसे करते हैं? ऐसे क्वेश्चन ऐसे करते हैं. डाइस 1 को आप ऐसे लिख लो एक बार. 1 2 3 4 5 6. एंड डाइस 2 वी राइट लाइक दिस. 1 2 3 4 5 6. So we are trying to show you what are the outcomes you can get. You can get a 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 and 1 6. 2 1 2 2 2 3. These are my outcome matrix. This is, it will be a 36 outcome. 2 4 2 5 2 6. Similarly 3 1 4 1 5 1 6 1. 6 1 and 1 6 are totally different. Do you know the difference between 6 1 and 1 6? 6 1 मतलब पहले डाइस पे 6 आया. 1 6 मतलब पहले डाइस पे 1 आया. ठीक है ना? चलिए, मुंह ऐसा चौनी जैसा मत बनाओ. मैं कोई गुस्सा नहीं होता हूँ. वो सब होता है फिर उड़ जाता है. अंगद का ये हम लोग पिछले साल से ही झेल रहे हैं और इस साल भी झेल रहे हैं उसको. तो एंजॉय अंगद, है ना? उसको बोल दो डू नॉट ओपन द टेलीविजन, देयर इज अ पोटेंशियल चांस ऑफ गेटिंग अ शॉक. तो सर स्विच ऑफ करके खोल सकते हैं ना. वो वैसा है. मैं बोलता हूँ हाँ एक बार शॉक खा ले फिर समझ में आ जाएगा शॉक क्या है. ठीक है, प्लेटर बन गया हमारा. 36 आउटकम्स आते हैं हमारे 2 कॉइन्स को टॉस करने से. ये आपको आना चाहिए. ठीक है, बनाना. क्वेश्चन क्या है? ऐसे प्रोबेबिलिटी निकालो जहां दोनों को ऐड करने से 5 बनता है. दोनों को ऐड करने से 5 मतलब यू शुड नॉट सी द 5 कॉलम एट ऑल, क्योंकि 5 के साथ कुछ भी आएगा तो 5 से ज्यादा ही हो जाएगा. हाँ, तो दोनों को ऐड करने से 5. बताओ क्या क्या है. यहां से शुरू करें. यहाँ पे ये वाला क्वालिफाई करेगा, यहाँ पे ये वाला क्वालिफाई करेगा, यहाँ पे ये वाला क्वालिफाई करेगा, यहाँ पे ये वाला क्वालिफाई करेगा. और कुछ है 5 आने वाले. डिड यू अंडरस्टैंड? सम ऑफ द नंबर्स ऑन 2 डाइस शुड बी 5. हो गया, ये कर लेंगे. आइए आगे चलते हैं. क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? इवन नंबर ऑन बोथ. इवन ऑन बोथ, तो इसमें हमें सिर्फ इवन वाले रोज देखने हैं.
इवन वाले रोज देखो, 2 2 2 4 2 6, फिर क्या है इवन रोज देखो 2 and 4 हो गया, ये भी हमने देख लिया, 2 के साथ 4 देख लिया, 2 के साथ 6 देख लिया। अब 4 के साथ देखो 4 and 2 में ये वाला चलेगा, 4 and 4 चलेगा, 4 and 6 चलेगा, और क्या चलेगा 6 and 2 चलेगा, 6 and 4 चलेगा, 6 and 6 चलेगा, यानी कि हमारे पास 9 फेवरेबल आउटकम्स है आउट ऑफ 36। क्लियर? पढ़ो इसको, क्या लिखा है, इवन नंबर ऑन बोथ द डाइस। इवन पता है ना क्या है, 1 3 5 है ना, नहीं ढूंढ रहा है वो, अभी कुछ एक मिस्टेक मिल जाए यहाँ पे तो मैं जानता हूँ क्या चीज, डबलेट। डबलेट, डबलेट जैसे 2 हंस, पैर, डबलेट क्या क्या है, हाँ 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 हाँ, कुछ दिनों बाद तुम भी कॉलेज में डबलेट के जैसे घूमोगे, समझ में आया ना, और फिर घर पे आके बोलोगे शी इज माई मॉम, टच हर फीट, वो भी डबलेट ही है। दीपांशु समझ गया, तेज बच्चा है। ऋषभ हंस रहा है, देखो मैं तो अभी भी हूं, खाली घर में नहीं बताया है ना। शाबाश, तेजीदा समझा तो, व्हाई इज योर फेस पेल, यू अंडरस्टूड डबलेट क्या है एंड व्हाट इज एन इवन नंबर। आशका, हैव यू अंडरस्टूड? अद्वैत क्लियर है ये वाले प्रॉब्लम? चलिए आगे। हाँ, आपको घर पे करना है यहाँ, नहीं तो हम एक एक प्रॉब्लम लिख लिख के करेंगे तो थोड़े हम खत्म कर पाएंगे। क्लास इज गेटिंग रिकॉर्डेड, क्लास यू आर गेटिंग एज पीडीएफ, घर में जाके रिकॉर्डिंग चलाओ, देखो, थोड़ी बैठ के तुमको वो क्या है आई5 अवार्ड्स देखना है। चले आगे। हाँ, नेक्स्ट, 2 डाइस आर थ्रोन एट द सेम टाइम। ओके, 2 डाइस मतलब सैंपल स्पेस कैसा रहेगा, 4। 2 dice thrown at the same time means your sample space will be head 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 head। Oh, 2 dice, अच्छा मैं 2 कॉइन देख रहा हूँ, देखो 2 dice, 2 dice मतलब वही 36 वाला क्वेश्चन है, मतलब ये पिछले टाइप के जैसा ही है। एंड सम ऑफ द 2 appearing on 2 is more than 9, more than 9 करना है। अच्छा, 9 मिनिमम कहां से पैदा होगा, मुझे लगता है 3 के सीरीज से पैदा होगा, 3 and 6 gives you 9। 2 से हम 9 पैदा नहीं कर सकते, 2 से मैक्सिमम पैदा कर सकते हो 8, 1 के सीरीज में मैक्सिमम आप पैदा कर सकते हो 7। हमें कितना निकालना है, मोर देन 9। 3 और 6 में कितना होता है 9, तो 3 के सीरीज में भी नहीं होगा, 4 के सीरीज से होगा। आइए, सो सबसे पहले 4 and 1 will give you 4 and 1 will give you 5, 4 and 2 6, 4 and 3 7, 4 and 4 8, 4 and 5, so 4 and 5 qualifies, and more than 9, sir. oh, more than 9, so even this one doesn't qualify, so 4 and 6 qualifies. So if 4 and 6 qualifies, automatically 6 and 4 will also qualify, and then 5 and 5 qualifies, 5 and 5 and 6 will qualify, 5 and 6, so 6 and 5 will also qualify, and 6 and 6 should also qualify, more than 9 बोला है ना। 6 and 6 gives you how much, 12। और कुछ छूटा है क्या, आप देखो 4 के सीरीज में एक ही आएगा, 4 and 6, 5 के सीरीज में 5 and 5, 5 and 6, 6 के सीरीज में 6 and 6, and 4 and 6 क्वालिफाई करेगा तो 6 and 4 भी क्वालिफाई करेगा, 5 and 6 तो 6 and 5 भी। दिस इज मोर देन 9। all in probability they will check is whether you are able to break these logics or not। लॉजिक को ब्रेक कीजिए। सो एक समरी लिखते हैं, अब तक हमने क्या समझा। बेसिकली आपको एक क्वेरी रहेगा, ठीक है, उस क्वेरी को आपको में एक लॉजिक रहेगा, उस लॉजिक से बेसिकली यू हैव टू गेट अ नंबर। दिस नंबर मे बी आइदर योर favorable count, maybe this may be your favorable count, और सम एडजस्टमेंट करना होगा आपको इसमें। जैसे वो बॉल वाले क्वेश्चन थे, आपको ब्लैक चाहिए तो रेड वाला का काउंट आ रहा था। सुनते जाइए क्या मैं बोल रहा था, दोनों सब बात कर रहा हूँ, सबको सेपरेट करूंगा मैं अभी। तुम दोनों फिर से
फेवरेबल काउंट आएगा। फेवरेबल काउंट का मतलब है आइदर फेवरेबल आ भी सकता है और यू मे गेट a number. That number you have to massage more to get your favorable count. Like in that problem, we wanted red, but first we got black. Black को आगे प्रोसेस किया तो white मिला, white को प्रोसेस किया तो red मिला। Have you understood? ठीक है। और फिर इसको करना क्या है, हमारे फॉर्मूला में डाल देना है। यही तो अब तक आपने सीखा। और फॉर्मूला क्या है, P of an event is equal to n favorable divided by n total। बस, फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम। देखो तो इसको ये माइंड मैप अभी समझ में आ रहा है। क्वेश्चन में एक क्वेरी रहेगा, उस क्वेरी के लॉजिक को ब्रेक कीजिए, कुछ एक नंबर मिलेगा। दैट नंबर इन इजी क्वेश्चंस विल बी द फेवरेबल काउंट। इन लिटिल बिट ट्विस्टेड क्वेश्चन इट विल बी अ नंबर व्हिच हैज टू बी प्रोसेस्ड मोर टू गेट द फेवरेबल काउंट, देन पुट योर फॉर्मूला। चलिए अगला क्वेश्चन, फास्ट फास्ट फास्ट। ओके, कार्ड्स। वन कार्ड इज ड्रॉन random from a shuffle of 52 cards. Find the probability that the card drawn is a king. कितने राजा होते हैं? 4 राजा। So 4 by 52. How many kings? 4 kings. Next is लाल 8। लाल 8 दो होते हैं, ठीक है ना? Hearts and diamonds. Very good. स्पेड के 13 कार्ड्स होते हैं। So 13 by 52. A red card 26 by 52. We have got 26 red cards. The 6 of clubs, there is only one 6 of clubs. A face card, 12 फेस कार्ड होते हैं। देखो लॉजिक से, अब वही वाला सवाल देखो, हर क्वेरी से लॉजिक से एक नंबर फेवरेबल होगा या फिर मसाज होगा। इसके बाद भी अगर गलती करते हो, बैल्कनी से कूद जाना, वो भी अपने घर से, मेरे वाले से नहीं तो केस मेरे पे आएगा। हाँ, क्लियर? आगे चलिए। नहीं, ये दूसरा क्वेश्चन है, ये थोड़ा अलग है। तुमको देखने में एक जैसा लग रहा है लेकिन ये थोड़ा सा टिक करता है। ओके, नाउ आ जाओ, ये थोड़ा सा एक लेवल ऊपर है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी गेटिंग अ किंग ऑफ रेड सूट। तो लाल राजा कितने होते हैं? 2 लाल राजा है, 2 बाई डायमंड हार्ट। क्वीन ऑफ ब्लैक सूट, 2 जैक ऑफ हार्ट, देयर इज ओनली 1 जैक ऑफ हार्ट्स, जैक ऑफ हार्ट्स। रेड फेस कार्ड, रेड फेस कार्ड कितने होंगे? देयर आर रेड जैक, रेड क्वीन एंड रेड ब्लैक। इन रेड जैक देयर आर 2 रेड जैक्स। डायमंड एंड हार्ट। रेड ब्लैक क्यों बोल रहे? I said a red jack, a red queen and a red king. A red jack can be a hearts jack or a diamonds jack. तो इस तरह से हमें 6 क्या मिलेंगे? फेस कार्ड्स which will be red in color. Clear? चलो next. Cards are very easy. One card is drawn random from a well shuffled deck of 52 playing cards. Find the probability that the card is a card of spade or an ace. 70. एक मिनट, कार्ड ऑफ स्पेड, अ कार्ड ऑफ, हमें पूछा है कार्ड ऑफ स्पेड्स। स्पेड्स कितने कार्ड हैं हमारे पास? 13. वी हैव गॉट 13 स्पेड्स। ओके, याद रखिए, वेट ना, इतना बकर करते रहते हो ना। इस 13 में एक एस घुसा हुआ है, प्लीज अंडरस्टैंड। इन 13 में एक एस घुसा हुआ है, तो बाहर कितने 2 एस है? 3 और है। इसलिए बोलता हूं, सुनहरी और काला देखने से शेर मत बोलो, दुपट्टा भी हो सकता है। पास में जाओ और उसको छू के देखो, अगर उसने आपको काटा तो वो शेर है, नहीं काटा तो वो दुपट्टा है, ठीक है ना? और आपको कितने चाहिए? एस चाहिए। एस मतलब मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा? रिमेनिंग कितना एस है? 3। इसलिए 17 जिसने गला फाड़ के बोला था CHULLU, समझ गए? Yes. BHAR, चुल्लू पर पानी में डूब मरो, ठीक है? 17 नहीं होता है क्योंकि एक एस इसमें घुसा हुआ है। Have you understood? Clear? Anyone who has not understood number 1, please say. There's nothing shame or anything. Number 1, part 1 you have understood? Okay. Pisha, are you counting the time? कब घर जाने को मिलेगा? So please wait. हाँ. Okay. A black king. 2 black kings. So it will be 2 divided by 52. 2 मतलब 2 is your favorable, mind you. The answer is not 2. Then neither a jack nor a king. तो इसके लिए ये कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट करेंगे। हम पहले प्रोबेबिलिटी ले लेंगे, जैक एंड किंग का ले लो।
नीदर अ जैक नॉर अ किंग। जैक और किंग का प्रोबेबिलिटी ले लो। कितने जैक हैं आपके पास? 4। कितने किंग हैं? 4। so this will be 8/52। so this will be 8/52। बट ये नहीं पूछा आपको पूछा P नॉट जैक, ये पूछा है ना, और किंग, तो वो हो जाएगा 1 - 8/52। Yes. ठीक है, आगे चले। आइदर ए किंग और ए क्वीन, तो किंग जोड़ लो, कितने किंग हैं? 4 किंग। कितने क्वीन हैं? 4 क्वीन, डिवाइडेड बाय 15। क्लियर? चलिए आगे, नेक्स्ट। From a pack of 52 playing cards, Jack, Queen, Kings, Aces of red color are all removed. I ho. Jack, Queen, Kings and Aces of red color. रेड कलर, ध्यान दे, अच्छे से पढ़िए, रेड कलर ही रिमूव हुआ है। तो क्या क्या रिमूव हुआ है जरा देखे तो। 52 कार्ड्स में से क्या क्या चला गया? एक जैक चला गया है रेड कलर, यानी कि 2 जैक जाएंगे, देन 2 किंग जाएंगे, 2 क्वीन जाएंगे और 2 एस जाएंगे। 2 4 जा 8। बचे कितने कार्ड आपके पास? 52 - 8, 44 कार्ड्स हमारे पास बचे हैं अभी। From the remaining, a card is drawn at random. यहां से randomly pull out हो रहा है। Find the probability that the card drawn is a black queen. अब कितने black queen बचे हैं? 2। 2 divided by 44. Clear? Break the question first into its parts and then do. A 10. 4 10s are remaining. हमने कोई 10 को नहीं छेड़ा। 4 divided by 44. I missed the second one. A red card. 18. What did I miss? A black queen I have done. I've missed the red card question. So a red card. Now please understand. How many red cards you have removed? 8 red cards. How many red cards were there? 26 में से आपने 8 red cards remove कर दिए। आपके पास कितने बचे? 16 red cards बचे हैं। सॉरी 18 रेड कार्ड्स बचे हैं। 18 रेड कार्ड्स में से एक रेड कार्ड निकालना है। टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स आर हाउ मच? 44। हु हैज नॉट अंडरस्टूड प्लीज टेल मी। दोबारा बता दो। हमने 52 कार्ड्स में से 8 कार्ड निकाल दिए। कौन से? 2 राजा, 2 गुलाम, 2 बेगम और 2 इक्का, एस। बचे कितने कार्ड? 44। इस 44 में से ब्लैक क्वीन निकालो। 2 ब्लैक क्वीन है। इस 44 में से एक रेड कार्ड निकालो। 26 रेड कार्ड में से 18 चले गए, सॉरी 8 चले गए, 18 रह गए। 18 में से 44 एंड अ 10 हमने नहीं छेड़ा था। 4 10s were still remaining। ये सबसे इजी मजेदार क्वेश्चन। Find the probability that a non-leap year selected at random will contain 53 Sundays. Non-leap year. अच्छा, non-leap year means normal year. How many days do you have? 365. 365 days is equal to how much? 2 weeks plus 1 day. ये जानिए पहले। A normal year is 52 weeks plus 1 day. हमें पूछा कितना? 53 Sundays. 52 वीक में 52 संडे आएगा ही आएगा। डू यू एग्री? पहले समझिए इसके लॉजिक को, ठीक है। हमें बोला 53 संडेज चाहिए, मतलब ये जो एक्स्ट्रा डे है, द क्वेश्चन इज ये डे संडे होगा, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? तो ये डे क्या हो सकता है? संडे हो सकता है, मंडे हो सकता है, ट्यूसडे हो सकता है, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे या फिर सैटरडे। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं? 7। इसमें हमें 53 आना है तो सिर्फ ये सपोर्ट करना पड़ेगा, यानी कि आंसर इज 1/7। दिस इज अ वेरी लॉजिकल क्वेश्चन। नॉन लीप ईयर इज 365 days which is 52 weeks and 1 day, ठीक है ना। 52 को 7 से मल्टीप्लाई करो, 364 आएगा आपका, ठीक है। समझ में आया? 52 वीक्स में 52 संडे तो होएगा ही भाई साहब। हमको चाहिए 53, मतलब एक और संडे चाहिए। अब हमारी किस्मत कितनी अच्छी है कि जो एक दिन बचा है वो संडे होगा, उसकी क्या गारंटी है? वो एक दिन ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। समझ में आया? जब ये होगा तब अपना किस्मत चमकेगा। अगर ऐसा ही है तो ये सवाल करते हैं, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अ लीप ईयर विल कंटेन 53 संडेज। आहा, ये और इंटरेस्टिंग। लीप ईयर में है 366 डेज, जो कि है
52 वीक्स Plus 2 days. प्लस 2 डेज। अब ये इंटरेस्टिंग है, 52 वीक्स में हमें क्या पेंसिल बॉक्स कटर पुटर कर रहे हो, छोड़ दो ना, आराम से बैठो। 52 संडेज आएगा ही आएगा, अग्रीड और नॉट? घड़ी देख के मत चलो, यूर इन ग्रेड 10। हमें लेफ्ट 2 डेज। अब लेकिन प्रॉब्लम और इंटरेस्टिंग है, अब 2 डेज बचा है, 2 डेज, ऐसे 2 दिन बचे हैं। ये 2 डेज क्या क्या हो सकता है? संडे मंडे, मंडे ट्यूसडे, ट्यूसडे वेडनेसडे, वेडनेसडे थर्सडे, देन थर्सडे फ्राइडे, फ्राइडे सैटरडे, फिर सैटरडे संडे, फिर संडे मंडे। अब देखो हमें क्या क्या फेवर करता है, ये वाला कॉम्बिनेशन होने से भी फेवर हो जाएगा, ये वाला होने से भी फेवर हो जाएगा। क्लियर और नॉट? द टू कंडीशंस दैट फेवर अस आर संडे मंडे और Saturday Sunday. Anyone favors us. Total number of outcomes: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7. How many favors you? क्लियर हुआ? अगर आप लीप ईयर हो, फिर से इसके बाद और शायद प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ ग्रे हो गया ना, हमेशा देख के रखना, जब ये ग्रे हो जाता है मतलब आगे और नहीं है। So if this is gray, so in a leap year I have got how many days? 366. In 366 days it's 52 weeks, 2 days. 52 weeks gives me 52 Sundays, 2 days, and I need one more Sunday. These 2 days can come in these combinations. Out of these combinations, 2 combinations are favorable to me. ठीक है? ये PDF करूंगा और आपको एक complete PDF का एक with solved examples करके, there is a booklet that I am sending for probability only, which has all board questions and all. उसको कर लिया तो जिंगा लाला। With this, one minute. With this, I close probability from my side. You have now 1 week, not 1 week, every time you can go on doing, and never try to do all in one go. मैं आज 10 problems निकालूंगा probability के, ऐसे करते जाइए। Next class we will start with trigonometry. And you need to get your pencil and scale in your next class. Yes, Ashka? Sir, can't we also have Monday first and then Sunday? I think like 1 minute. She's asking a question from the chapter. Please don't talk. Can't we also have? sir, Monday and Sunday and then like That's what I have done. बिटो days तो Monday के पीछे Sunday है ना, तो दिन कैसे आएगा? पहले संडे फिर मंडे ना, मंडे एंड संडे कैसे होगा? these are the 2 days. This is day 1, this is day 2, this is day 1, this is day 2, ऐसे तो जाएगा ना। संडे मंडे अगर यहाँ आया तो नेक्स्ट तो ट्यूसडे होगा ना बिट्टू। Are you getting the logic? हमें संडे चाहिए ना, तो संडे पहले आता है भाई। आपके इस आइडिया से तो हर कोई खुश हो जाएगा। मंडे स्कूल जाने के बाद नेक्स्ट डे संडे, वाओ, आशका को मिलता है एक नोबेल प्राइज और सबको आराम मिलता है, छुट्टी मंडे के बाद संडे। एनीवन विल लव दैट, बट दैट्स नॉट, दुनिया की घड़ी वैसे नहीं चलती है। ठीक है, चले फिर, राइट? सो वी विल क्लोज हियर एंड